Everyone and namaskar to all. So today I am here to teach you about the customer and shopper right. We call it as a consumer rights. ये जो कंज्यूमर राइट्स है ये हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बनाए गए हैं. सो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. First of all, we will discuss about the meaning of the consumer rights. So, consumer rights are the set of rights governed by the law that gives allow customer to have the necessary information about goods and services while purchasing. Basically, ये जो customer rights है ये customers के लिए बनाए गए हैं. It's all made for the customers who are exploited by the producer. फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं कभी मार्केट में, सो वी हैव अ राइट टू नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो हमें जो राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा कि हम हर चीज़ को बिना परखे बिना बिना किसी चीज़ के परखे या बिना किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के बिना हम वो चीज़ नहीं खरीद सकते. या हम अगर हम खरीद रहे हैं, इफ़ वी आर परचेजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, सो वी हैव द इक्वली राइट टू know about the information about that particular product. So these all are the rights has made for these kind of people, and we are also uh, part of that consumer rights. So in 1960, the president of John F. Kennedy, who is initially introduced the idea of the consumer right. Consumer right can be defined as a right to safety, right to be informed, right to choose, and these right to be heard. So basically it means जो the president of John Kennedy जो थे उन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था ये कंज्यूमर राइट्स. फॉर फ्रॉम दिस राइट्स देयर वर नो राइट्स वाज introduced in India. So firstly, this right has introduced in 1960 by John Kennedy uh, for a consumer right, and he has also introduced the five main rights of the consumer rights. So next we will discuss about what the exactly rights about. So another thing that we all know about, and we need to know about the consumer right importance. Consumer right importance, this Consumer Protection Act provide consumer right to prevent consumer from fraud or specified unfair practices. These rights ensure that customer can make better choice in the marketplace and get help with complaints. So basically it means these are the act made for a customer. If he find some damaged product, for example if we ordered in online like some particular thing like a sari, jewelry, anything whatever, and we got the defected piece, so we have a right for questioning, and we have a right to replace that particular thing. सो हमें वो जो चीज़ है हमें हमें एक राइट दिया गया है कि हम उस चीज़ के ऊपर क्वेश्चनिंग करें और उस चीज़ को रिप्लेस करें और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट करें कि ये प्रोडक्ट कहाँ बना है, कैसे बना है. तो ये हमारा एक राइट है. सो नेक्स्ट, और ये राइट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट, ये एक्ट दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986, एंड दिस इज द सच अ सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड लर्न. द नेक्स्ट थिंग इज, and we have already see the picture of the right. These are the consumer right, and this is the diagram of the rights. The next thing, the five main consumer rights. So we will discuss about the one by one. First is right to safety. Before buying, a consumer can insist on the quality and guarantee of goods. They should ideally purchase and certified product like ISI or AG mark. So this is a right to safety. For example, if we buy something, a particular product which we, जब हम उस चीज़ को हम एक चीज़ को हम परचेज़ करते हैं मार्केट में जाके, सो वी हैव अ वी हैव द राइट टू सेफ्टी. मतलब कि जो वो चीज़ है वो हमें हमें उस चीज़ का राइट है. वो जो हमने जो चीज़ खरीदी है हमें उसकी हमें अपनी सेफ्टी का उसमें राइट है. फॉर एग्जांपल जब हम कोई चीज़ लाइक जो क्रीम खरीदते हैं मार्केट में, जैसे हमें बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट दिखाई देते हैं जिसमें कि हम ये प्रोडक्ट लगाएंगे तो हम उस प्रोडक्ट से हम गोरे हो जाएंगे पल भर में. सो दैट वाज द एडवर्टीज़मेंट स्ट्रैटेजी. सो हमें इन सब चीज़ों से अब हम बहुत ऊपर हैं. हम अब इस चीज़ों से हम समझ चुके हैं. सो ये जो सेफ्टी का जो एक राइट है ये हमारे लिए ही बनाया गया. इट्स ऑल अबाउट फॉर द कस्टमर्स. हमें अपनी सेफ्टी पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं. तो ये जो सेफ्टी का जो हमारे बनाया गया है राइट, दैट इज़ अ मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल. सो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लगाएं तो हमें वी शुड ऑल अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट
कि वी शुड ऑल नो अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट, चाहे वो लाइक वो मेडिसिन हो, चाहे वो क्रीम्स हो या कुछ भी हो, तो उसकी सेफ्टी, तो उस चीज़ का डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट हमें पता होनी चाहिए। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑफ अ पीरियड ये चीज़ वहाँ से स्टार्ट हो गई। अब हम जब भी हम कोई चीज़ प्रोडक्ट हम देखते हैं, उस पे लिखा होता है बाकायदा कि ये चीज़ अब इस पे बनी है, इसका मैन्युफैक्चर है, ये इस डेट पे बनी है। सो ये वहाँ से फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ पीरियड इट हैड स्टार्टेड। सो नेक्स्ट इज़ right to choose. So as we already discussed about the particular point, so right to choose, customer should have the right to choose from variety of goods and competitive price. So like जैसे कि हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो हमें इस वैरायटी को हमें हमें उस चीज़ को चूज़ करने की हमें राइट है। फॉर लाइक जब कोई कस्टमर है जाता है किसी मार्केट में, सो उस मार्केट में पर्टिकुलर जो एक बंदा है जो चीज़ अपनी बेच रहा है, वो हमें कोई एक ही चीज़ नहीं दिखाएगा अपने प्रॉफिट के लिए। वो अपनी कोई एक ही चीज़ हमें शो नहीं करेगा। लाइक कोई कस्टमर है, वो जाके दुकान में कोई सोप मांग रहा है, तो वो एक ही चीज़ की वैरायटी नहीं दिखाएगा अपने फ़ायदे के लिए, तो वो अलग अलग वैरायटी की चीज़ें हमें दिखाएगा। तो ये जो चीज़ें दिखाना है, ये जो चीज़ को वो जो शो करते हैं, ये हमारा राइट है। दैट इज़ वाई दे शो द डिफरेंट वेराइटीज़, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द मार्केट प्लेस देर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस, एंड समटाइम्स वी are confused to choose exactly. So the right to choose, we should have the right to choose the variety of goods and the competitive price. So the next is right to be informed. The buyer should be informed with the necessary detail of the product, make him act wise and the change of their buy decision. So I have already discussed about that कि जो एक जो प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, उसका हमें एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन को जानना कि वो प्रोडक्ट कब बना, कहाँ बना, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कब बना, और उसका इवन की एक्सपायरी डेट क्या है। सो हम जब भी कोई दवाई भी लेने जाते हैं फॉर अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, देयर आर लॉट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया, एंड हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइक मेडिसिन खरीदते हैं, तो उसमें बाकायदा उसकी बनने की डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की डेट और उसकी इवन की एक्सपायरी डेट भी उस पर लिखी होती है। सो दिस वॉज द मेन रीज़न फॉर कंज्यूमर राइट्स। एंड द नेक्स्ट इज़ right to consumer education. Right to the consumer education, consumer should be aware his right for avoid exploitation, ignorance and cost them for more. Basically we have a right for consumer right. हमें हर चीज़ को अवेयर, और हमें जो भी कोई एक्सप्लोटेशन से, इफ़ वी आर डीलिंग विद एक्सप्लोटेशन, सो वी हैव इक्वली राइट टू take an action against that producer. So right to be heard, this means that the consumer, we will get due attention to express their grievance and the suitable form. Right to seek compensation, this defines that the consumer had right to seek the redress against an unfair, the cruel practices or exploitation of the consumer. Right to seek compensation, if this point has a main is the main point is this स्लाइड इज़ राइट टू सी कंपनसेशन। मतलब कि अगर कोई जो प्रोडक्ट है उसका हमें अगर हमने किसी चीज़ को कुछ ज़्यादा पैसों में ख़रीद लिया हो और हमें बाद में लगा हो कि हमने उस चीज़ के ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो हम उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, हमें ये राइट है। तो हम इवन कि अगर वो चीज़ बाद में ख़राब निकली है, तो हम उस चीज़ का कंपनसेशन भी उस कंपनी से मांग सकते हैं, हमें इतना राइट दिया गया है। अगर कोई चीज़ बाकायदा, लाइक हमने कोई न्यू फ़ोन ख़रीदा और जब हमने फ़ोन चलाया तो दैट वाज अ डिफेक्टेड पीस, एंड जब वो चलाया तो हमने उस चीज़ को रिप्लेस करना, उस ऑनलाइन में रिप्लेस करने का ऑर्डर डाला, और वो जो कंपनी है, एंड दैट कंपनी इज़ डिनाइंग यू टू एक्सेप्ट दैट प्रोडक्ट, तो हमको ये राइट है कि हम उस चीज़ का कंपनसेशन मांग सकें। द नेक्स्ट स्लाइड इज़ द कोपरा. This is the main significant part of that right. The COPRA exactly meaning the Customer Production Act law and in the favor of customer, wherein there the interests are taken into the consideration and given the preference. The law was recently amendment in 2019 to replace the existing one of the passed back in 1986. And there was as a per meaning consumer, customer with further their as per meaning of a customer right, the main objective behind enacting and law of the facilitating consumer with the remedies or a quick redressal of the grievance. The law hold special provision mean the consumer through the right higher authority can be resolved and the dispute faced by the consumer. So जो ये जो कोपरा एक्ट है, ये जो बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया है जो हमारे तरह जो कंज्यूमर हैं, जो
एक्सप्लॉइट हो जाते हैं या कोई डिफेक्टेड पीस उनको मिलता है, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। ये जो लॉ बना था जब 1986 में बना